ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत दिन डोरमेंट था, मतलब बहुत दिन मतलब कुछ महीना डोरमेंट था, और आज बहुत महीना का बाद फिर हम लोग आया इसमें। इस बार का रिसेंटली असेंबली में जो चीज़ गवर्नमेंट का तरफ से जो डिस्कस हुआ उसको हम लोग कुछ यहाँ में पॉइंट्स रखने के लिए आज आया। हमारा इस तरफ है भाई तारिंग ताको, और ये है तपान्याम, ये है SD लोधा, और ये है रमजी रक्षक। तो सबसे पहले हम लोग का आर्टिकल 317H का जो इशू को असेंबली में जो चर्चा, उसका इंचार्ज हम रमजी रक्षक को बनाया था उसमें ऑर्गेनाइजेशन का ओर से। तो ये अपना जो यहाँ क्या डिस्कस हुआ, कैसे हुआ, प्रोस एंड कॉन्स को ये थोड़ा अभी बताएगा रमजी रक्षक। Audible, no? Thank you, media friends, और हमारा चेयरमैन सर को भी. So I'll be very brief. On 13/8/2021, we have submitted a representation to the state government, to the Chief Secretary and to Chief Minister, in regards to Article 371H. So since Article 371H, after the formation of our association, our organization, we are an association of same mind who thinks to work for the upliftment and for to rectify the system that is prevailing in our society, और जो जहाँ पे हम लोग का वो है, तो सासी इसके लिए फॉर्म हुआ था. So just after the forming of we have discussed a matter 371H, which is a very what do you say, subject or issues which has been neglected by most of the organization and the state government. Since Article 371, which is in the core of the Indian Constitution, Article 371, which talks about our state, there was lapses and there was a need for amending it. So in regards to this, we have submitted a representation. Since many of the organization and many of political party had raised this issue in the past, but they have left it midway. So seeing the present scenario in the state, we had felt it necessary to raise this. So in this regard, we had submitted a representation that I have mentioned earlier. And then after submitting this, we had launched a sticker protest rally at Akasdeep, and then we had a mass gathering there also. And pros and cons were discussed there in a public rally. And then after that, we were waiting for the action of the government. And thereafter, after the rally, we had met individually to all the elected representatives, particularly to NPP, then Congress, and we have met and for those whom we could not meet it personally, we have sent them our representation also. Accordingly, taking the cognizance of our appeal, Bibing Ninong Iring has raised the issue in a 0-hour motion at the State Legislative Assembly. We are thankful to him for raising the issue and feeling feeling it necessary, since this is the voice of Arunachal Pradesh. Sasi, we are just an agent voicing for the people of Arunachal Pradesh, because people of Arunachal Pradesh wants constitutional amendment. So I will not talk about the pros and cons now, just lightly I am focusing it. So we are thankful to Bibing Ninong Iring for raising this issue and discussing this in the State Assembly in depth. And apart from that, I would also like to thank our Honorable Pema Kandu sir, who has taken it cognizance, and then he has assured that he will be forming, and there was a genesis of this sequence that has occurred in this regard. There were meetings, and then thereafter the letter which they have forwarded is in the Home Ministry, and some has come back. So he has assured the people of Arunachal Pradesh that he will form an independent high power committee consisting of all the elected, consisting of selected elected representatives and including organization. Here we are thankful to Pema Kandu, and we are hopeful that he will be abiding by his words. And meanwhile, taking this opportunity, we would also like to appeal
Kiran Rijiju sir, who is the law ministry, while the state recommends and while they come there in the center, we hope that he will cooperate with the state government, and then this matter will be passed, and we will victoriously we will get amendment into this Article 371. We will be obliged. And apart from that, I would also like to say that we SASI, we have raised this issue, will not leave this midway. If the government doesn't fulfill, or if the government doesn't stick to their words, we'll take up rigorous democratic movement or any sort of movements in order to safeguard our future generation and in order to get this Article 371H amendment. This is all that I have to say. Thank you. Now ये जो फॉरेस्ट का जो इशू में जो इंचार्ज था हमारा एडवोकेट SD लोधा, उसको अभी ये अपना जो टेक्निकल पॉइंट्स को ये पूरा ब्रीफ करेगा. Good afternoon, media fraternity. So this is Mr. SD Lodha again on your frame, and सबसे पहले तो मैं शायद आप लोग भी पता होगा, you all might be aware about the vexed forest issues which is rampant in Arunachal Pradesh. Prior to the 1980 Forest Conservation Act, there were a lot of reserve forests which was declared by the then government and the government, the NEFA, North East Frontier Agency. तो उसमें क्या होगा कि अनेक प्रकार का फॉरेस्ट बनाते गया. यहाँ का शायद जो नोटिफाइड करने वाला इंसान, जो यहाँ का जो फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर है, उन लोगों को भी पता नहीं था कि यहाँ का लोग, ट्राइबल लोग भी एक बार पॉपुलेशन, तब ट्राइबल लोगों का भी पॉपुलेशन ग्रोथ होगा बोल के मालूम नहीं था. तो फूड हिल में पूरा रिजर्व फॉरेस्ट बनाते गया. तो अभी देखा जाने में क्या हो गया कि यू विल फाइंड ह्यूमन एंड एनिमल कन्फ्लिक्ट. तो आप लोगों को ऐसे बहुत सा देखने मिलेगा. नाउ फॉर इंस्टेंसेस आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट टुडे जहाँ पे हम लोग प्रेस ब्रीफिंग कर रहा है, ये भी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है. तो उस तरह का बहुत सारा है जो ओवरलैपिंग फॉरेस्ट इशूज जो है. सो सासी बीइंग इंडिजिनस ऑर्गेनाइजेशन constantly pursue this issue, and we are happy to learn that ki our elected representatives are also concerned about these issues, and the same has been taken up in the state recently concluded state legislative assembly. तो उसमें भी बजट सेशन में वो 0 आवर डिस्कशन में उन लोगों ने बहुत ही मैंने सीरियसली और बहुत डिटेलली डिस्कशन किया. एंड वी हैव गॉट एश्योरेंस फ्रॉम द मिनिस्टर कंसर्न की the government under the leadership of Pema Kandu has already directed the respective deputy commissioner to submit the proposal for divergence of some portions of the reserve forest, notified reserve forest or the wildlife sanctuary to the concerned authority, that is DFO of the respective divisional forest office. So we are very much obliged and thankful to the government of Arunachal Pradesh for taking cognizance of these vexed issues. सो हम लोगों ने ये इशू का चलते हम लोगों ने बहुत सा अनाप शनाप बातें भी किया होगा शायद इशू को लेके. कभी कभी क्या हो जाता है कि हम लोग का इमोशन और बर्स्ट हो जाता है, क्योंकि हम लोगों को ऐसे लगता है कि सरकार नहीं सुनता है, लेकिन सरकार को सुनना होता है एक्चुअली लोगों का आवाज़ को. तो इस बार हम लोग को पता चला है कि यस, गवर्नमेंट भी सीरियस है ये इशू को लेके. तो हम लोगों ने बहुत थैंकफुल है कि सरकार, हमारा जो फॉरेस्ट मिनिस्टर है मामा नतुंग जी, उसका मैंने पूरा सेशन में मैंने सुना, उसका जो लेक्चर को, स्पीच को उन्होंने एश्योरेंस दिया. और उनका द्वारा ही पता चला कि चीफ मिनिस्टर भी एश्योरेंस दिया है, और चीफ मिनिस्टर का भी पर्सनल एक कंसर्न है कि ये फॉरेस्ट का इशू जो है ये बहुत डेवलपमेंटल जो प्रोजेक्ट को भी हमेशा एक ये हर्डल होता है बोल के, तो इसलिए सभी को इन्फॉर्मेशन दिया है बोलता है. So this much we have got the assurance from the government of Arunachal Pradesh, and in between this I would say that कि अगर कल को अगर गवर्नमेंट इसको सीरियस नहीं होता है तो वी विल कम बैक अगेन. तो इशू, फॉरेस्ट इशू जो है कितना कठिन है आप लोगों को हम बता देना चाहूँगा. जैसे कि आप एक प्रोजेक्ट करने जा रहा होगा, तो उसमें सबसे पहले तो अगर वो नोटिफाइड फॉरेस्ट लैंड है तो आपको NOC का जरूरी होता है, नो ऑब्जेक्शन जो सर्टिफिकेट्स है. That too from the not from the state forest department but from the ministry level. So this is a very serious, and you have to pay compensatory afforestation fund,
नेट प्रेजेंट वैल्यू, ये सब देना पड़ता है. नाउ आई हैव गॉट information from the department itself ki to denotify the Durpang Reserve Forest and the Itanagar Wildlife Sanctuary, the state government has to pay more than 600 crore till 2014. नाउ अगर ये लाइबिलिटी जो है अगर अभी आप लोग रेशनलाइज नहीं करेगा, अभी डी रिजर्व नहीं करेगा, तो देन लाइबिलिटी विल बी कैरी फॉरवर्ड. देन बाद में जब उसका दाम बढ़ेगा, एज you might have already heard about the lectures of the the forest minister कि उन्होंने क्या बोला, पर हेक्टर 15 लाख करके देना पड़ेगा इफ यू वांट टू डी नोटिफाई द नोटिफाई फॉरेस्ट रिजर्व एरिया. नाउ ये 15 लाख जो काल को 10 साल का बाद कितना दाम होने वाला है. सो वी आर रेजिंग दिस सीरियस इश्यूज because we do not want ki there in future there shall be conflict between the human and the animals and the forest. तो फॉरेस्ट भी हम लोगों को जरूरी है. हम इस आप लोगों का आज का प्रेस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का माध्यम से मैं जनता को भी मैं एक चीज क्लियर कट कहना चाहता हूं, डी नोटिफाई जो कंप्लीटली नहीं होगा, कुछ पोर्शन जो ह्यूमन सेटलमेंट एरिया है उसको डी रिजर्व करेगा. अभी डी रिजर्व करेगा बोल के जहां तहां का जमीन लेके नहीं घूमना है. कुछ जो ऑलरेडी ह्यूमन सेटलमेंट एरिया है उसको हम लोग डी रिजर्व करेगा. और डी रिजर्वेशन का प्रोसेस में भी हम लोग भी साथ में हमेशा मॉनिटर करके रहूंगा कि कंप्लीट डी रिजर्वेशन को हम लोग फिर से अपोज करता है. ह्यूमन सेटलमेंट एरिया को डी रिजर्व करना जरूरी है. और जैसे कि ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अभी ईटानगर को एविक्शन इज नॉट पॉसिबल एट ऑल. नाउ वी वांट दैट द बाउंड्री हैज टू बी रैशनलाइज, इट शुड बी शिफ्टेड टू सम अदर प्लेसेस. तो उसमें देखा जाने से यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ कैचमेंट एरिया ऑफ द स्ट्रीम्स दैट इज इन द माउंटेनस रीजन्स, उसको भी बचाए रखना चाहिए. तो ऐसा नहीं है कि माउंटेन को भी काटेगा, पूरा जंगल पहाड़ खत्म करेगा, देन how people will people could able to live here in the Itanagar city. We need a very dense forest in the periphery of the Itanagar also, so that we could able to get oxygen and other natural resources and water, drinking water के लिए वो जरूरी होगा ना. तो इसलिए हम ये कहना चाहता हूं आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस से कि जब तक अगर आप रेशनलाइज और डी रिजर्वेशन में नहीं जाता है तो फॉरेस्ट लॉ को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन भी करते रहना चाहिए. और हम लोग मॉनिटरिंग करते रहेंगे कि किस तरह अभी डी रिजर्वेशन का प्रोसेस हो रहा है. तो सभी डीसी को अगर डायरेक्शन दिया तो सभी डिप्यूटी कमिश्नर भी सीरियसली इसको लेके अभी से डी रिजर्वेशन का प्रपोजल जो पीसीसीएफ ऑफिस में भेज देना चाहिए, सो दैट की गवर्नमेंट विल टेक कॉग्निजेंस ऑफ द मैटर्स एंड द गवर्नमेंट विल रेकमेंड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डी नोटिफाई द रिजर्व फॉरेस्ट इश्यूज. तो ये सब चीज है. तो हम इतना ही बोलेंगे. थैंक यू वेरी मच. तो मेरा जितना ये हमारा रोमजी रक्षक और एचडी लोधा जो आर्टिकल 371H का मॉडिफिकेशन और इसका जो फॉरेस्ट इशू में ये दोनों जो इंचार्ज है मतलब टेक्निकल पॉइंट्स को डील करने के लिए ब्रीफली आप लोग को बताया. हम लास्टली ये बोलेगा जितना भी ये जो रिजर्व फॉरेस्ट इशू है, रिजर्व फॉरेस्ट का मतलब ऐसा है कि डी रिजर्व उसको करेगा जहाँ जहाँ में आदमी मतलब सेटल है और सामने में जो बागान वगान बनाते खेती करते हैं. ऐसा नहीं कि जंगल पूरा मेरा है उसको डी रिजर्व, वो सब नहीं करना है. जैसे कि कुछ जगह में नामसाई में है, नामसाई भी ऑलमोस्ट 60% रिजर्व एरिया है. तो आदमी सेटलमेंट कहाँ रहेगा, उसको कम से कम जहाँ सेटलमेंट है उसको डी रिजर्व करना है. जैसे आलो साइड में भी एक तो योरदूर में सबसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक है, उसमें भी ऐसा है. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी जहाँ आदमी सेटल होना चाहता अंदर का उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रख दें. उसको भी रैशनलाइज करके अंदर तरफ ये करके जहाँ आदमी जरूरी है उसको भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी देखना है जहाँ आदमी सेटलमेंट का जरूरी है. उसका बाद में बहुत सा जगह में है. इसका ईटानगर का तो बताया, दुर्पंग का तो बताया, किमिन साइड में भी है. तो उसको गवर्नमेंट अभी जब इनिशिएट ले रहा है, लेके सब कमिश्नर को बोल रहा है कि यहाँ से जितना ये है आपका प्रॉब्लम्स है उसको जहाँ डी रिजर्व करना लेके आप बोला है. सुप्रीम कोर्ट में फाइट करेगा मिल के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बात करिए. बहुत अच्छा साइन है, बहुत अच्छा साइन है. और आर्टिकल 371H का तो आपको पूरा डिटेल बताया. तो हम लोग गवर्नमेंट को ये नहीं करता वो नहीं करता बोलने का जगह तो हमको दिखाई नहीं दे रहा है. क्योंकि अभी देखने को मिलता है बीजेपी एमएलए लोग तो तारीफ करता ही है हमारा सीएम को, कांग्रेस एमएलए भी तारीफ करता है. तो हम लोग भी तो गाली देने का जगह नहीं है, तो हम लोग भी तो तारीफ कर देगा ना. अंदर द डायनामिक एनर्जेटिक यंग स्मार्ट सीएम का अंदर में ये सब अगर हो जाता है बहुत अच्छा बात. तो
हम लोग ऐसा है जैसे कि ये हमारा अभी एडवोकेट साहब बोला, ये दोनों बोला, हमारा इशू को अगर अभी हम लोग सोल्व हो जाता है तो हम सासे हम डिजोल्व भी हो जाएगा, क्योंकि हमारा मकसद ही नहीं ना रहने का। जब इशू गवर्नमेंट टेकअप करता है पब्लिक का हित में, तो हम लोग ऑर्गेनाइजेशन किस लिए बेचेगा। इसीलिए ये कुछ महीना में ना या साल का अंदर में अगर इशू को गवर्नमेंट सीरियसली टेकअप करता है, हम लोग अपना ये को डिजोल्व कर देगा शासी को, क्योंकि शासी का और आगे रहने का कोई मतलब मकसद ही नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन एक मकसद से बनता है। गवर्नमेंट उसको गवर्नमेंट हर एमएलए जो ध्यान देना है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन क्या इशू को उठाता है। अब जरूरी नहीं है कि उसको खिलाएगा पिलाएगा तब इशू उठाएगा, ऐसा नहीं होना है। तो इस बार निनोवेरिंग साहब ने इशू उठाया, सीएम साहब ने अच्छा से इसको एड्रेस किया, तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा बात है, स्पेशली पीपल ऑफ अरुणाचल के लिए ये बहुत अच्छा बात है। और गवर्नमेंट अच्छा काम करने से तारीफ करना है, एक सिटीजन का ड्यूटी है। अच्छा नहीं करने से हम लोग बोलेगा, इसमें हम लोग गवर्नमेंट का इंडिविजुअल वो आदमी ऐसा नहीं है। अभी अच्छा काम कर रहा है तो हम लोग तारीफ जरूर करेगा, कल को अच्छा नहीं करेगा, जैसे अभी असेंबली में लिप सर्विस दे दिया, देखते हैं तो काम नहीं हुआ, तब तो हम लोग फिर सड़क में उतरेगा, वो है। और दूसरा लास्टली इस बार का इशू को गवर्नमेंट टेकअप करेगा बोला है, इसीलिए हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा है। और बाकी हमारा आज इतना कुछ डिस्कशन करने के लिए नहीं है। गवर्नमेंट को उल्टा हम लोग बोलेगा बेस्ट ऑफ लक, ये इशू को आप जैसे असेंबली में डिस्कस किया ऐसे ही बाहर में भी आप इसको ले जाइए, और जहां में ऐसे वॉलंटियर हिसाब में जहां जरूरी है वह हमेशा हम लोग साथ से स्टैंड होगा, और आप गवर्नमेंट पब्लिक भी हमेशा साथ में रहेगा। थैंक यू वेरी मच।